السلام علیکم، میرا نام حسن عباس ہے۔ میں سوچ ویڈیوز کے لیے اسلام آباد میں پچھلے چند مہینوں سے بحیثیت کورٹ کورسپونڈنٹ کام کر رہا ہوں۔ یوں تو ہر دن ہی عدالتوں میں کوئی نہ کوئی دلچسپ مقدمے آتے ہیں، لیکن گزشتہ جنوری اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک بہت اہم کیس آیا تھا جو خبروں کی زینت بھی بنا رہا اور مجھے بھی بہت دلچسپ لگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے اپنے ایک عدالتی فیصلے میں پاکستان نیوی فارم اور نیوی سیلنگ کلب کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے انتظامیہ کو حکم دیا کہ وہ نیوی فارم کو اپنے قبضے میں لے لیں جبکہ سیلنگ کلب کو مکمل طور پر منہدم کر دیں۔ نیوی فارم دارالحکومت اسلام آباد میں سملی ڈیم روڈ کے ساتھ موجود ایک ریئل اسٹیٹ سوسائٹی، جبکہ نیوی سیلنگ کلب اس سے 13 کلومیٹر دور راول ڈیم کی جھیل کے ساتھ واقع ہے۔ راول ڈیم 1962 میں بنا تھا۔ اس میں کورنگ نالے اور دیگر چھوٹی ندیوں کا پانی جمع ہوتا ہے اور یہ پانی اسلام آباد اور راولپنڈی کے مکین استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جھیل مختلف جنگلی حیات کا گھر بھی ہے، لہٰذا مارگلا ہلز کے ساتھ راول جھیل کو بھی ماحولیاتی وجوہات کی وجہ سے سرکاری طور پر پروٹیکٹڈ ایریا قرار دیا گیا ہے۔ نیوی فارمز اور سیلنگ کلب الگ پروجیکٹس، لیکن نیوی فارمز کے کیس کے دوران مدعی کی درخواست پر سیلنگ کلب کی قانونی حیثیت کو بھی مقدمے میں شامل کر لیا گیا۔ ان دونوں پروجیکٹس کی خاص بات یہ ہے کہ ان کا بالواسطہ یا بلا واسطہ تعلق پاکستان نیوی کے ساتھ ہے، جس کی وجہ سے عدالت نے حکومت کو یہ بھی کہا کہ وہ غیر قانونی نیوی سیلنگ کلب کا افتتاح کرنے پر سابق نیوی چیف ایڈمرل ظفر محمود کے خلاف فوجداری کارروائی شروع کریں۔ آخر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان دونوں پروجیکٹس کو غیر قانونی کیوں قرار دیا؟ سوچ ایکسپلینز دا کیس آف پاکستان نیوی فارم اینڈ سیلنگ کلب۔ پہلے بات کرتے ہیں پاکستان نیوی فارمز کی۔ محکمہ مال کے کاغذات کے مطابق پاکستان نیوی فارمز کی زمین ڈائریکٹر جنرل ویلفیئر اینڈ ریہیبلیٹیشن پاکستان نیوی کے نام تھی، جبکہ 1993 میں ڈائریکٹر ہاؤسنگ PNS ظفر نے CDA سے اس پروجیکٹ کے لیے NOC مانگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا تھا کہ پاک بحریہ کو اس فارم کے لیے NOC دینا غیر آئینی تھا۔ پاکستان کے دستور کے مطابق پاک فوج، بحریہ اور فضائیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ وفاقی حکومت کی ہدایات کے مطابق ملک کو بیرونی جارحیت یا جنگ کے خطرے سے محفوظ رکھے یا طلب کرنے پر سول حکومت کی مدد کو آئے۔ دفاعی افواج پراپرٹی کا کام نہیں کر سکتے۔ افواج کے لیے زمینیں وفاقی حکومت فراہم کرتی ہے اور ان کے انتظامی امور کی ذمہ داری وزارت دفاع کے مخصوص ملٹری لینڈ اینڈ کنٹونمنٹ ڈپارٹمنٹ کی ہوتی ہے۔ اس فیصلے کو سمجھنے کے لیے ہم نے ایڈوکیٹ زینب جنجوعہ سے بات کی، جنہوں نے پاکستان نیوی فارم کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ مقدمہ لڑا۔ ایک ڈاکٹرائن ہے جس کو کہا جاتا ہے ڈاکٹرائن آف انیومریٹڈ پاور۔ اس کو سمپلیفائی کیسے کیا جا سکتا ہے؟ This doctrine is not new in our jurisprudence۔ یہ اس سے پہلے بھی کورٹس ریپیٹڈلی ایگزیکٹو ایکشنز کو انلیگل ڈکلیئر کرنے کے لیے اس کے اوپر ریلائی کرتی ہیں، بٹ جس طریقے سے اس کو الیبوریٹ کیا گیا ہے ججمنٹ میں اور جس طرح سے پاکستان نیوی پہ اپلائی کیا گیا ہے، آئی تھنک دس ہیز ہیپنڈ فار دا فرسٹ ٹائم۔ وہ ڈاکٹرائن یہ ہے کہ جو اختیارات ایکسپریسلی آپ میں کسی بھی پبلک یا کانسٹیٹیوشنل باڈی میں آئین یا قانون کے تحت بتا دیے گئے ہیں کہ آپ کے یہ اختیارات ہیں، اس سے تجاوز وہ نہیں کر سکتے، وہ ان اختیارات سے باہر نہیں جا سکتے سمپلی اس بیسس پہ کہ یہ منع نہیں ہے۔ اور اس میں ایک اگر میں سمپل کر کے بتا سکوں کہ ایز اے پرائیویٹ سٹیزن آف پاکستان میں ہر وہ چیز کر سکتی ہوں جو مجھے لا کرنے سے منع نہیں کرتا، بٹ ایک پبلک ادارہ اور ایک کانسٹیٹیوشنل ادارہ صرف وہ کام کر سکتا ہے جو اس کو لا ایکسپریسلی اجازت دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر مجھے یہ کرنے سے منع نہیں کیا گیا ہوا تو میں کر سکتا۔ تو اسپیسیفکلی یہ ریزننگ اڈاپٹ کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ آرٹیکل 245 آف دا کانسٹیٹیوشن پڑھتے ہیں تو اس میں آرمڈ فورسز کے اختیارات بڑی کلیئرٹی سے ڈیفائن ہیں، اور وہ اختیار یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کے بارڈرز ڈیفینڈ کرنے ہیں، آپ نے پاکستان کے لیے کوئی جنگ ہے تو اس میں پاکستان کا دفاع کرنا ہے، اور جہاں پر فیڈرل گورنمنٹ کو ضرورت پڑے گی آپ نے ان ایڈ آف سول پاور فیڈرل گورنمنٹ کو ایڈ کرنا ہے۔ دیٹس اٹ۔
इसके अलावा आपको कोई इख्तियार नहीं दिया गया। तो जब पाकिस्तान नेवी जाकर कोई कमर्शियल या रियल एस्टेट वेंचर्स करती है तो वो किस ना दैट इज वॉर, नीदर दैट इज इन एड ऑफ सिविल पावर। तो जब ये नहीं है तो आपके पास ये इख्तियार है ही नहीं। अच्छा, अब इफ वी टेक अ स्टेप बैक और हम सोचें कि ये क्यों है लॉ में या ये क्यों है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसका रैशनल क्या है, इसकी मंशा क्या है, वो भी चीफ जस्टिस साहब ने बड़ी डिटेल में अपनी जजमेंट उसको एड्रेस किया है। और उन्होंने ये कहा है कि किसी भी मुल्क की जो आर्म्ड फोर्सेस होती हैं वो कंट्रोवर्शियल नहीं हो सकती, उनको इस तरह से प्रोटेक्ट करना है कि वो किसी कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व ना हो। अब अगर आर्म्ड फोर्सेस कमर्शियल वेंचर्स करने के लिए जाके अग्रीमेंट साइन ऑफ करती हैं तो पोटेंशियली वो अपने आप को एक्सपोज कर रही हैं कि कॉन्फ्लिक्ट होंगे। जब आप कमर्शियल अग्रीमेंट साइन करते हैं या एक्टिविटीज कैरी ऑन करते हैं तो एन मुमकिन है कि आपके कॉन्फ्लिक्ट होंगे। वो कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ होंगे? उस मुल्क के सिटीजन्स के साथ होंगे जिनकी दिफा के लिए आप बैठे हुए हैं। इन सारी बातों को एक तरफ रखते हुए नेवी फार्म्स ने उस एनओसी की भी खिलाफ वर्जी की जो सीडीए ने इन्हें जारी किया था। उन्होंने वहां बड़ी तामीरात की, जबकि एनओसी में ये बात वाज़े तौर पर तहरीर थी कि इन प्लॉट्स को सिर्फ फल और सब्जियां उगाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तान बहरिया का मौक़िफ़ है कि नेवी फार्म को अब पाकिस्तान नेवी वेलफेयर ट्रस्ट चलाता है। अदालत ने यह सवाल भी उठाया कि आया ऐसा कोई ट्रस्ट वफाकी हुकूमत की इजाज़त के बगैर बन भी सकता है, क्योंकि इस तरह के कोई दस्तावेज अदालत को जमा नहीं करवाए गए। When they came up with this idea of the welfare trust, और वो एक डीड ले आए, ट्रस्ट डीड 2018 की, जिसमें ट्रस्टीज जो है बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, उस पे जो टॉप टियर है ऑफ पाकिस्तान नेवी वो बैठी हुई है, इंक्लूडिंग जो उस टाइम के नेवल चीफ थे जिनके रिलेटेड ये फाइंडिंग्स भी कोर्ट ने दी हैं, वो खुद उस बोर्ड पे बैठे हुए थे। और बाकी भी जो लोग बैठे हुए थे वो टॉप टियर सर्विंग नेवी के ऑफिशियल्स की थी। बट इंटरेस्टिंगली वो डीड 2018 की थी, जबकि ये नेवल फार्म और इसकी जमीन एक्वायर्ड 90s में हुई है। So they were simply not able to establish, अगर हम although कोर्ट ने तो ये कह दिया कि ये ट्रस्ट भी नहीं establish हो सकता था unless फेडरल गवर्नमेंट से अप्रूवल होता है and so on and so forth। नाजरीन, अब हम आते हैं नेवी सेलिंग क्लब की तरफ। पाक बहरिया का कहना था कि ये गैर कानूनी प्रोजेक्ट नहीं था, क्योंकि 1991 में उस वक्त के वजीर आज़म ने नेवी चीफ को मुल्क भर के पानी के खेलों का सरपरस्ते आला बनाया था और खेलों के फ़रोग के लिए नेवी ने इस प्रोजेक्ट की तजवीज़ दी थी। दिसंबर 1992 में मुतल्लिका महकमों की तरफ से एक मीटिंग हुई और फैसला किया गया कि सीडीए एक कंसल्टेंट को कमीशन करेगा जो रावल डैम में वाटर स्पोर्ट्स के हवाले से माहौलियाती स्टडी करेगा। कंसल्टेंट ने बोट हाउस ना बनाने की तजवीज़ दी, क्योंकि ये रावल डैम में आने वाले माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए नुकसानदेह होगा और तामीराती कामों से डैम का पानी मज़ीद आलूदा होगा। नेवी सेलिंग क्लब जैसी जगह से रावल डैम के माहौल को क्या नुकसान पहुंच सकता है, ये समझने के लिए हमने सीनियर माहिर माहौलियात प्रोफेसर जाहिद बेग मिर्ज़ा से उनकी राय ली। अभी जो रावल लेक है, इस पे 3 किस्म के परिंदे होते हैं। एक रेजिडेंट हैं, एक पहाड़ों से आते हैं, एक साइबेरिया वगैरह से आते हैं। उनके आने से और वो उनके यहाँ पर एक्टिविटी से, यहाँ पर रहने से वो कम से कम 8-8, 10-10 बीठे तो दिहाड़ी की करते हैं। और उनकी बीठों में फॉस्फेट्स होते हैं, नाइट्रेट्स होते हैं, नाइट्राइट्स होते हैं, जो यानी खाद होती है कुदरत के उसमें, जिसकी वजह से उसमें जो छोटे छोटे पौधे हैं वो पैदा होते हैं और उन पौधों को खाने के लिए छोटे छोटे कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं और उनकी छोटे छोटे कीड़ों को खाने के लिए और पौधों को खाने के लिए दूसरे जानवर उनके ऊपर पलते हैं और मछली की खुराक होते हैं। और जिस मछली की खुराक ज़्यादा हो वो मछलियां जो हैं उनके जल्दी परवरिश पाती हैं और बड़ी हो जाती हैं, हमें बड़ा फ़ायदा होता है। अब इन परिंदों को डिस्टर्बेंस अगर होती है, उस पानी में डिस्टर्बेंस आती है, भले वो सेलिंग क्लब क्यों ना हो,
वहाँ से जो कचरा भी और वहाँ से जो डिस्टर्बेंस आती है इनडायरेक्टली वो सारे इकोसिस्टम को नुकसान पहुँचाती है। तो वो हम नहीं चाहते कि ये हो, इसलिए इसका वहाँ से ये एक्टिविटी ख़त्म करना बड़ा लाजमी है। कोर्ट में पेश किए गए वफाकी कैबिनेट डिवीज़न के दस्तावेज़ात के मुताबिक इस क्लब की इमारत को बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए था और इसे रावल झील से कम से कम आधे किलोमीटर के फासले पर होना था। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आधा किलोमीटर तो नहीं है। छोटे डैम्स को संभालने और पानी के ज़ख़ीरे की जिम्मेदारी स्मॉल डैम्स ऑर्गेनाइजेशन की है। 1994 में सीडीए की मीटिंग में स्मॉल डैम्स ऑर्गेनाइजेशन ने इस क्लब से रेजरवायर को लाहक खतरात के बारे में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। मीटिंग के तमाम फरीक़ैन का इस बात पर इत्तफ़ाक़ था कि रावल डैम पर कश्ती रानी की सरगर्मियाँ नहीं होनी चाहिए। इस सब के बावजूद नेवी ने इस क्लब की तामीरात जारी रखी। सीडीए ने नेवी की तामीरात रोकने के लिए 4 नोटिस भेजे, जिनमें से एक डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ को भेजा गया था। स्मॉल डैम्स ऑर्गेनाइजेशन ने भी चीफ स्टाफ ऑफिसर को बजरिया ख़त ये इतला दी थी कि ये तामीर गैर कानूनी है। इस हवाले से कैबिनेट सेक्रेटरी की एक रिपोर्ट अदालत को जमा करवाई गई, जिसको देखने के बाद अदालत का कहना था कि उस वक्त की वफाकी काबीना भी इस मामले में बेबस नज़र आ रही थी। फैसले में कहा गया कि नेवी अदालत में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सकी जिससे ये साबित होता कि ये ज़मीन उन्हें कानूनी तौर पर दी गई थी। वो वाला आर्गुमेंट भी है कि अगेन नेवल चीफ के पास इख्तियार नहीं था ये काम करने का। अच्छा, उसकी एक्सप्लेनेशन जो उन्होंने दी भी थी, उन्होंने कहा जी हमें तो पेट्रन इन चीफ बनाया हुआ था प्राइम मिनिस्टर ने एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। पेट्रन इन चीफ उन्हें वाटर स्पोर्ट्स का बनाया था। पेट्रन इन चीफ को ये नहीं इख्तियार दिया था और ना दे सकती थी, क्योंकि लॉ के मुताबिक वो इख्तियार सीडीए का है, फेडरल गवर्नमेंट का नहीं है। नवाज शरीफ साहब के टाइम के जो सारी नोटिफिकेशन थी उस पर ये रिलाई कर रहे थे, वो उनका भी इख्तियार नहीं था। नवाज शरीफ साहब कह भी देते कि आप बना दे, तो उनका इख्तियार नहीं था जब तक लॉ में वो अमेंडमेंट ना करते और वो इख्तियार फेडरल गवर्नमेंट में नहीं आता। बिकॉज अगर वो लैंड अलॉट करना है तो वो सीडीए ने करना है। एंड रिपीटेडली ड्यूरिंग द हियरिंग चीफ जस्टिस साहब ने कहा आप मुझे कोई अलॉटमेंट लेटर दिखा सकते हैं, उन्होंने कहा नहीं। उनका जी हमारे पास नहीं। उन्होंने कहा कोई पोजेशन लेटर दिखा सकते हैं, उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा आप वो वहां बैठे हुए कैसे हैं फिर? तो फिर वो कहते थे जी हमें पेट्रन इन चीफ बनाया हुआ था और ये था कि हमने वाटर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज डेवलप करनी है। एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान नेवी का एक बहुत क्लोज रोल है विद सेलिंग एंड जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस वगैरह भी होते हैं, तो वी हैव टू ट्रेन आवर ऑफिशियल्स एंड फॉर सेलिंग एंड सो ऑन। इसका मतलब हुआ कि डैम में कश्ती रानी और तामीराती सरगर्मियां दोनों गैर कानूनी थीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुताबिक बहरिया के एहलकारों ने न सिर्फ मजाज हुकाम की तरफ से भेजे गए नोटिस को नज़रअंदाज किया, बल्कि बहरिया के आला तरीन ओहदेदार यानी नेवी चीफ को भी इस गैर कानूनी इमारत के इफ्तिताह के लिए मदऊ कर लिया। फैसले में कहा गया चीफ और दीगर नेवल स्टाफ अपने आइनी मैंडेट से तजावुज़ करने और अपने इदारे की इमेज को ख़राब करने में मुलविस हैं। पाकिस्तान नेवी ने इस फैसले के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने की कोशिश की, लेकिन फिर खुद ही वापस ले ली जब हाई कोर्ट ने कहा कि नेवी बराह रास्त इस फैसले के ख़िलाफ़ अपील कर ही नहीं सकती, क्योंकि ये इख्तियार तो वज़ारत दिफा का है। इस केस के अलावा जनवरी 2022 में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्लाह ने प्रोफेसर जायद बेग मिर्ज़ा की तरफ से दायर किए गए केस में इस्लामाबाद के प्रोटेक्टेड इलाके में पाकिस्तान नेवी के ही बनाए हुए गोल्फ क्लब को गैर कानूनी करार दे दिया। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने गोल्फ क्लब को मुकम्मल तौर पर मुनहदम या माहौल दोस्त तरीके से इस्तेमाल करने का हुक्म दे दिया है। इसी तरह मार्गला हिल्स नेशनल पार्क के 8000 एकड़ से ज़ायद के इलाके पर पाकिस्तान आर्मी की मलकियत के दावे को भी कानून के ख़िलाफ़ करार दिया। क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फ़ैसला मुस्तकबिल में अफवाज पाकिस्तान को कमर्शियल सरगर्मियों में हिस्सा लेने से या प्रोटेक्टेड ज़मीनों पर कब्ज़ा करने से रोक सकेगा? इस बारे में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दें, और अगर आपके पास मज़ीद सवालात हैं तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं।